Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start our new topic, that is ethers. In the chapter of hydroxy derivatives of hydrocarbons, we have studied alcohols, then phenols, and today we will study about ethers. Now, what are ethers? Ethers are those compounds which have an oxygen atom and that is bonded to two carbon atoms, like this oxygen atom. On both sides, there are carbon atoms. This linkage is known as ether linkage, and the compounds which have this linkage they are known as ethers. Now, there are different types of ethers on the basis of this alkyl group that is attached on both sides of oxygen atom. Now, this alkyl group may be aliphatic and this may be aromatic. Uh, this is represented by R when it's aliphatic. Now, in this case, on both sides there are aliphatic R groups, so it's known as dialkyl ether. And on one side there may be alkyl group, and on the other side there may be aryl group, that is aromatic ring. So it's known as alkyl aryl ether, and on both sides there may be aromatic part or aromatic group. So it's known as diaryl ether. So on the basis of alkyl group attached to oxygen on both sides, it may be dialkyl ether, alkyl aryl ether, and diaryl ether. Now, on the basis of this R group, alkyl group, or aromatic group, ethers may be further divided into two types, that is, symmetrical ethers and unsymmetrical ethers. If these two R groups are similar, then it's known as symmetrical ether. And if these two R groups are different, or one is R and other is aromatic, one is alkyl group aliphatic and other is aromatic, then this is known as unsymmetrical ether. So for example, we can study this one ether, ethyl and ethyl. On both sides there is ethyl part, and these two groups are similar, so it's no, a symmetrical ether. But if on one side there is methyl and on other side there is ethyl group, it's known as unsymmetrical ether. So you have to remember the types of ether on the basis of groups that are attached on the both sides of oxygen atom, and then if they are similar or unsimilar. Now the next thing that you have to remember, that is the general formula for ethers, and this is for aliphatic ethers: CnH2n plus 2O. This is general formula for ethers, and it's same as for मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स. मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का भी जनरल फार्मूला से यही है, CnH2n plus 2O. But difference is that alcohol may be of one carbon, but in case of ethers there must be at least two carbons. बिकॉज अल्कोहल्स में एक साइड पे भी अगर कार्बन है, सेकंड साइड पे OH हो सकता है, बट ईथर्स में दोनों साइड्स पे ऑक्सीजन के कार्बन होंगी, तभी हम उस मॉलिक्यूल को ईथर कहेंगे. Now, first of all, we have to study about the naming of ethers. And as you already know that we can name the compounds on the basis of common names as well as IUPAC names. We will study the rules for both types of names. First one are common names of ethers, and the common names of ethers are derived by the two alkyl groups that are attached on both sides of oxygen. We write the name of these alkyl groups in alphabetical order, and for this oxygen that is in the center we used word ether. ठीक है, ऑक्सीजन के लिए हम वर्ड लिखेंगे ईथर, और इन दोनों एल्काइल ग्रुप्स के नाम हमने लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. फॉर एग्जांपल, वन साइड पे यहाँ पर इथाइल ग्रुप है और सेकंड साइड पे ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है. So tertiary butyl will become first. For alphabetical order, tertiary is not considered. We will consider butyl. So tertiary butyl, ethyl, ether. कॉमन नेम्स में हमने जस्ट ऑक्सीजन की दोनों साइड पे जो एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, हमने उनके नेम्स लिखने हैं. और कैसे लिखने हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. और ऑक्सीजन के लिए हमने वर्ड यूज करना है ईथर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, दिस इज ऑक्सीजन, that is ether linkage. On one side there is methyl group, this is methyl group, and three carbon group with one double bond, it's known as allyl group. Okay, it's allyl group.
So on one side there is allyl group, on second side methyl group and ether. So it's allyl, methyl, ether. In next example, uh, on one side we have phenyl group and on other side it's isopropyl group. So it's isopropyl, phenyl, ether. Next, if we have two groups similar, that is the groups which are present on both sides of oxygen, they are similar, we would write the name of group and before that group's name we will use the term di for two. So here are ethyl groups on both sides, so it's diethyl ether. Next, CH2 double bond CH group with free valency is known as vinyl group. Now, in this compound on both sides there is vinyl group, so it's divinyl ether. Now, benzene ring with CH2 group, it's known as benzyl group. Now, in this compound on both sides there is benzyl group, so it's dibenzyl ether. ये तो थे कॉमन नेम्स और कॉमन नेम्स में आपने क्या याद रखना है कि हमने दोनों एल्काइल ग्रुप्स के नाम लिखने हैं जो ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे अटैच्ड हैं और उनको हमने कैसे लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और ऑक्सीजन के लिए वर्ड यूज करना है ईथर. नाउ नेक्स्ट आर आईयूपैक नेम्स. अब आईयूपैक नेम्स में बच्चों नेमिंग के लिए ईथर के लिए टू सिस्टम्स हैं. इससे पहले तक हमने जितने भी कंपाउंड्स पढ़े हैं आईयूपैक में उनके लिए सेम ही रूल होता है, एक ही टाइप की नेमिंग है, बट ईथर्स के लिए हम टू डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ेंगे. आईयूपैक सिस्टम में ही टू टाइप्स की नेमिंग होगी. फर्स्ट ये है कि जो भी ईथर है उनको हम नेम करते हैं एज एल्क ऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. इसका मीनिंग ये है कि हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं उनमें से जो लार्ज ग्रुप होगा जिसमें कार्बन्स का नंबर ज्यादा होगा उसको हम पेरेंट एटम का नेम देंगे और जो दूसरी साइड पे ग्रुप होगा ऑक्सीजन को उसके साथ अटैच करके हम उसका नेम बनाएंगे एल्क ऑक्सी. ये एल्काइल ग्रुप का हम एल्क लेंगे और ऑक्सीजन के लिए वर्ड यूज करेंगे ऑक्सी और ये पेरेंट नेम होगा, इसको हाइड्रोकार्बन का नेम देंगे. फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में जो लार्ज ग्रुप है वो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये क्या होगा पेंटेन. ये पेरेंट नेम हो जाएगा पेंटेन. अब इस ग्रुप को हमने एल्क ऑक्सी का नेम देना है. एल्काइल ग्रुप है, इसमें मिथाइल ग्रुप. एल्क के लिए हम मिथाइल से मैथ यूज करेंगे और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी. मिथॉक्सी पेंटेन. लेकिन ये मिथॉक्सी ग्रुप किस पोजीशन पे लगा हुआ है उसके लिए हम इस चेन की नंबरिंग करेंगे. नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां से इसको लोएस्ट नंबर मिले. सो इट्स 1 कार्बन नंबर 1 2. So methoxy group is attached at position 2. So it's 2-methoxy pentane. It's 2-methoxy pentane. Now in this compound there are two ether linkages, one ether linkage and second ether linkage, और 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं. ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है और ये इथाइल है. इन तीनों में से जो लार्जेस्ट है ये 3 कार्बन वाला, ये पेरेंट नेम हो जाएगा. ठीक है, ये 3 कार्बन वाला ये क्या हो जाएगा पेरेंट नेम प्रोपेन. पेरेंट नेम क्या होगा प्रोपेन. अब इसको भी हमने एल्क ऑक्सी लिखना है और इसको भी हमने एल्क ऑक्सी. ये इथाइल ग्रुप से है तो ये क्या हो जाएगा इथॉक्सी और ये मिथाइल ग्रुप से है तो ये क्या होगा मिथॉक्सी. अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे हम तो वन इथॉक्सी पहले आएगा, जो लार्ज ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर देंगे. हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3. सो 1 पोजीशन पे इसमें है इथॉक्सी और 3 पोजीशन पे है मिथॉक्सी और पेरेंट नेम क्या है इसका प्रोपेन. ठीक है, कि जो भी जितने भी इथर लिंकेज हैं हमने उनमें देखना है कि सबसे जो लॉन्ग चेन है वो ये है. पेरेंट नेम यही होगा, जो ज्यादा कार्बन होंगी प्रोपेन इसमें पेरेंट नेम होगा और इसके अलावा दोनों जो ग्रुप्स हैं उनको हम एज एल्क ऑक्सी नेम देंगे, इथॉक्सी एंड मिथॉक्सी. नेक्स्ट कंपाउंड देखें 6 कार्बन साइक्लोएल्केन. 6 कार्बन साइक्लोएल्केन इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन. सो इट्स साइक्लोहेक्सेन इसका पेरेंट नेम होगा और 1 कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है इसको हम एल्क ऑक्सी लिखेंगे तो इस कंपाउंड का नेम है मिथॉक्सी. सो इट्स मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन. नेक्स्ट कंपाउंड देखें हम. नेक्स्ट कंपाउंड देखें बच्चों, एक साइड पे ऑक्सीजन के सिर्फ 1 कार्बन है और इस साइड पे अगर हम देखें कि पूरा बेंजीन रिंग है और उसके साथ भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये मिथॉक्सी ग्रुप है और इसको हम पोजीशन 1 देंगे, 1 मिथॉक्सी. नेक्स्ट अगर हम नंबरिंग करेंगे 2 3 4, तो 4 पोजीशन पे मिथाइल भी अटैच्ड है, 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल
बेंजीन। जो लार्ज ग्रुप है कार्बन वाला, ये पेरेंट नेम होगा। तो ये कौन सा कंपाउंड है? 4 मिथॉक्सी बेंजीन। और 1 पोजीशन पे क्या अटैच है? मिथॉक्सी ग्रुप। सॉरी, ये 4 मिथाइल बेंजीन और 1 पोजीशन पे अटैच है मिथॉक्सी ग्रुप। तो इट्स 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट अब हम ये कंपाउंड देखते हैं बच्चों। इसमें देखें, ये 3 कार्बन साइक्लोएल्केन है, दैट इज साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा ऑक्सीजन के एक साइड पे, और इस साइड पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हाइड्रोकार्बन अटैच है, और उसमें डबल बॉन्ड भी अटैच है। तो ये जो कंपाउंड है इसकी हम नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग के लिए अब हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, बिकॉज एल्कीन फंक्शनल ग्रुप इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू ईथर्स। तो हम यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पोजीशन पे ये क्या है? हेक्सीन। 2 हेक्सीन पेरेंट नेम है। अब इसके 5 पोजीशन पे क्या अटैच है? साइक्लोप्रोपाइल ऑक्सी। साइक्लोप्रोपाइल ऑक्सी ग्रुप अटैच है, और ये 2 हेक्सीन है। नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम देखें बच्चों, इसमें ये देखें, इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इस साइड पे जो चेन है वो शॉर्ट है, सी इसमें 3 कार्बन हैं, बट उसके साथ साथ इस शॉर्ट चेन के साथ एक ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सल ग्रुप, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है हमारा, एल्कोहल्स हम इसको कहते हैं। अब एल्कोहल जो बच्चे होती हैं वो मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू ईथर। सो अब हम इसमें चेन को प्रेफर नहीं करेंगे कि लॉन्ग चेन को पेरेंट नेम नहीं देंगे, बल्कि हम जो फंक्शनल ग्रुप रिएक्टिव है उसको पेरेंट नेम देंगे। इस साइड पे 3 कार्बन है और 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये है हमारी एल्कोहल प्रोपेनॉल, और एल्कोहल पार्ट से ही हम इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। तो दिस इज 1 प्रोपेनॉल। और इस साइड पे कौन सा ग्रुप है? पेंटाइल ऑक्सी। और वो किस पोजीशन पे अटैच है? 1 2 पोजीशन पे अटैच है पेंटाइल ऑक्सी। सो इट्स 2 पेंटाइल ऑक्सी 1 प्रोपेनॉल। जी, अब आईयूपैक सिस्टम में ही एक और मेथड है जिससे हम ईथर्स की नेमिंग कर सकते हैं। इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि इस केस में जो ऑक्सीजन है, वो कह रहे हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो CH2 ग्रुप के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास हैं, इस कार्बन के पास भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप टोटल काउंट करें, इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 जो इसने बॉन्ड्स बनाए हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इस कार्बन को देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इस बॉन्ड के भी 2 और ये भी 2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कह रहे हैं ये ऑक्सीजन जो ईथर लिंकेज में है और जो CH2 ग्रुप है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो इस सिस्टम में नेमिंग करते हुए जब हम नंबरिंग करते हैं तो ऑक्सीजन को भी चेन के अंदर कार्बन की तरह इंक्लूड किया जाता है, और ऑक्सीजन को भी हम एक नंबर असाइन करेंगे। यानी चेन की नंबरिंग करते हुए हम डायरेक्ट एक साइड से स्टार्ट करेंगे, दूसरी साइड तक उसकी नंबरिंग करेंगे, और दरम्यान में जो ऑक्सीजन आएगा उसको भी हम एक नंबर देंगे। और फिर जिस पोजीशन पे ऑक्सीजन होगा, फॉर एग्जांपल 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, हम वो पोजीशन लिख के साथ ऑक्सीजन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ऑक्सा। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ऑक्सा। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये कंपाउंड है, हम इसकी नंबरिंग करेंगे। अब वैसे तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे कि ऑक्सीजन को लोएस्ट नंबर मिल जाए, लेकिन इसमें दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2, ऑक्सीजन को भी नंबर देना है बिल्कुल कार्बन की तरह, 3 आ जाएगा इसका, 4 और 5। सो 3 पोजीशन पे क्या है? ये ऑक्सा। और टोटल इसकी नंबरिंग में कितनी कार्बन तक हम गए? 5 तक। सो दिस इज 3 ऑक्सा पेंटेन। 3 ऑक्सा पेंटेन। इस सिस्टम में आपने जब चेन की नंबरिंग करनी है तो आपने ऑक्सीजन को भी एक नंबर देना है, और उस पोजीशन को लिख के आपने वर्ड लिखना है ऑक्सा। और ऑक्सीजन भी चेन में इंक्लूड होगी, ऑक्सीजन को ऐड करके टोटल जितनी कार्बन होंगी वो हम उसको पेरेंट नेम देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, क्योंकि ये तो OH ग्रुप है और इस साइड पे भी OH ग्रुप है, तो हम नेक्स्ट यहाँ से कार्बन से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल इसमें कितनी पोजीशन बनी? 8 पोजीशन। अब 3 पोजीशन पे ऑक्सा है और 6 पे भी ऑक्सा है, तो हम लिखेंगे 3 6 डाईऑक्सा। और 1 और 8 पे क्या है? ओल, OH ग्रुप है। और टोटल 8 कार्बन हैं, ऑक्सीजन को मिला के टोटल चेन में 8 एटम्स हैं, तो हम इसको लिखेंगे ऑक्टेन। और 2 OH ग्रुप्स हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डाईओल। और दोनों OH ग्रुप्स की पोजीशन लिखेंगे, एक 1 पोजीशन पे और एक 8 पोजीशन पे है।
So it's 3,6-dioxa 1,8-octane diol. तो मेरा ख्याल है ऑक्सा सिस्टम की आपको समझ आ गई होगी कि जस्ट आपने क्या करना है, जब अपने चेन की नंबरिंग करनी है ईथर मॉलिक्यूल की, तो आपने किसी भी एक साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से ऑक्सीजन को लोएस्ट नंबर मिले, और उसके साथ साथ आपने जब चेन की नंबरिंग करनी है ऑक्सीजन को भी एक नंबर असाइन करना है, और नेमिंग करते हुए ऑक्सीजन के नंबर का को लिखना है नीचे, और उसके साथ वर्ड यूज करना है ऑक्सा, और उसके साथ फिर पेरेंट नेम लिखना है. Now, next, some ethers are known by their special names. For example, methyl phenyl ether. It's methyl phenyl ether, but its common name is anisole. Now, it's ethyl phenyl ether. Ethyl phenyl ether, but its common name is फेनिटोल. तो ये दोनों ईथर्स ऐसी हैं कि जो अपने कॉमन नेम्स की वजह से ज्यादा फेमस है. इनके कॉमन नेम्स ही जहां भी देखेंगे आप बुक में प्रीवियस आपने फिनोल्स में भी ये दोनों कंपाउंड्स पढ़े हैं, तो इसको एनिसोल ही लिखा जाता है और इसको फेनिटोल ही. बहुत कम इसको इथाइल फिनाइल ईथर या फिर इसको मिथाइल फिनाइल ईथर लिखा जाएगा. ये इनके कॉमन नेम्स है. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टडी द preparation of ethers, that how we can prepare ethers. We will study here three different methods for the preparation of ethers. The first one method is intermolecular dehydration of alcohols. Means कि हम अल्कोहल के टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव करेंगे. डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स हम वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो वो ईथर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अल्कोहल के टू मॉलिक्यूल्स लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे हम, तो वन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और सेकंड मॉलिक्यूल से OH रिमूव होगा, और जो बाकी पार्ट बचेगा इथाइल पार्ट और एल्कोक्सी पार्ट, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर ईथर फॉर्म कर देंगे और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. ये तो था कि हम एलिफेटिक ईथर कैसे बना सकते हैं. अगर हमने एरोमेटिक पार्ट के साथ बनानी है तो हम वही अल्कोहल ले लेंगे, और बेंजीन रिंग के साथ अगर CH2 ग्रुप अटैच है बच्चों, तो हमेशा याद रखेंगे बेंजाइल ग्रुप कहलाता है. आगे जो भी फंक्शनल ग्रुप है इतने पार्ट को हम बेंजाइल कहेंगे, और साथ में ये क्या है, अल्कोहल. इसके टू मॉलिक्यूल्स लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे, तो वन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और सेकंड से OH मिलकर वाटर फॉर्म कर देंगे, और ये CH2 दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, और हमारे पास डाई बेंजाइल ईथर आ जाएगी. देखिए दोनों साइड पे बेंजाइल ग्रुप है, सो इट्स डाई बेंजाइल ईथर. अब अगर इस रिएक्शन में बच्चों कंपटीशन है बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. आप ये दोनों टाइप्स के रिएक्शंस डिटेल में पढ़ चुके हैं अल्काइल हैलाइड्स में कि व्हाट इज एलिमिनेशन एंड व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, और उन दोनों में बेस और न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, और एक ही चीज जो है वो एज अ बेस भी एक्ट कर सकती है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकती है. तो यहाँ भी कंपटीशन है बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करता है अल्कोहल की नेचर पे और रिएक्शन कंडीशंस पे. अब वो रिएक्शन कंडीशंस क्या है हम नेक्स्ट देखते हैं. अब अगर तो हम अल्कोहल लेते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ही लेंगे अल्कोहल के, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे, जस्ट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. इफ टेम्परेचर इज 140 सेंटीग्रेड देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, यानी टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान से वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ईथर फॉर्म होगी. बट इफ टेम्परेचर इज 180 सेंटीग्रेड देन ओनली वन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा, और वन कार्बन से OH और सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फॉर्म होगा, यानी एल्कीन बनेगी. तो ये था कंपटीशन बिटवीन एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन. ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट है बच्चों, जब एक ही कंपाउंड में से एक पार्ट से कुछ रिमूव हुआ और सेकंड से भी एडजेसेंट कार्बन से रिमूव हुआ, तो ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट है. बट इस केस में ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं हुई, सब्स्टिट्यूशन हुई है. सो हमने इस रिएक्शन को केयरफुली परफॉर्म करना है कि अगर तो हमें ईथर चाहिए तो हम लो टेम्परेचर रखेंगे 140 सेंटीग्रेड, बट अगर हमें इथीन एल्कीन रिक्वायर्ड है तो हम हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे. नाउ नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म है. मैकेनिज्म में वो कह रहे हैं कि ये SN2 मैकेनिज्म है, और जिसमें वन मॉलिक्यूल अल्कोहल का सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करता है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल. कैसे एक्ट करता है हम यहाँ इसके इसमें देखेंगे. जी, देखिए वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, और हमने इसमें क्या यूज किया था, सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट किया था. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन देगा इस ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो जाएगी. अब
नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअली तो ये होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल अब ये बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया यहाँ से। OH जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप नहीं था, सल्फ्यूरिक एसिड ने इसको प्रोटोनेट किया, अब ये बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये पहला मॉलिक्यूल था जो कि एज अ सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा है। अब जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। अब उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है? ये ऑक्सीजन एटम विद लोन पेयर। ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम विद लोन पेयर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे आके अटैक करेगी। ये वाटर लिख दिया उन्होंने यहाँ पे, माइनस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया। ये ऑक्सीजन आके इस कार्बन के साथ अटैच होगी, ये ऑक्सीजन अटैच हुई इस कार्बन के साथ। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई है, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को लूज कर देगी यहाँ से और ये कंपाउंड जो है वो ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल ने एज अ सबस्ट्रेट एक्ट किया और दूसरे मॉलिक्यूल ने एज अ न्यूक्लियोफाइल उस पे अटैक किया और इसके साथ ही ये जो हमारी एल्कोहल थी वो ईथर में कन्वर्ट हो गई। So it was preparation of ethers by intermolecular dehydration of alcohols, यानी हम alcohols को ethers में convert कर सकते हैं अगर हम उन्हें heat करें in the presence of sulfuric acid at 140 centigrade, तो intermolecular dehydration होगी। Now, okay, this method is used for the production of diethyl ether on commercial scale because diethyl ether जो है बच्चों बहुत सारी सिंथेसिस में फर्दर यूज होती है, तो इसी मेथड से डाइथाइल ईथर प्रिपेयर की जाती है और ये मेथड बेस्ट है फॉर सिमेट्रिकल ईथर्स। यानी डाइथाइल ईथर बना सकते हैं, डाइप्रोपाइल ईथर बना सकते हैं, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर बना सकते हैं, बट अनसिमेट्रिकल ईथर्स इससे नहीं बना सकते। बन तो जाएंगी लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम टू डिफरेंट अल्कोहल्स यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल वन इज इथाइल अल्कोहल एंड वन इज प्रोपाइल अल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करेंगे, तो प्रोडक्ट्स में इथाइल अल्कोहल के दोनों मॉलिक्यूल्स भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, तो उससे बनेगी डाई इथाइल ईथर। इसी तरह प्रोपाइल के दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो डाई प्रोपाइल ईथर बनेगी। और अगर इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल प्रोपाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो इथाइल प्रोपाइल ईथर बनेगी, यानी 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, डाई इथाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर एंड डाई प्रोपाइल ईथर। और अगर ये मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स, मिक्सचर ऑफ ईथर्स बनेगा, इनको सेपरेट करना मुश्किल होगा, इसलिए ये मेथड जो है वो अनसिमेट्रिकल ईथर्स के लिए बेस्ट नहीं, कि जब भी हम टू डिफरेंट अल्कोहल्स बनाएंगे यूज करेंगे तो उससे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगा जिनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा। बट इसमें भी कंडीशन है, वो कह रहे हैं कि अगर हम एक अल्कोहल ऐसी लें जो टर्शरी हो, ठीक है, और जो दूसरी अल्कोहल है वो प्राइमरी या सेकेंडरी हो, तो फिर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्यों एक ही प्रोडक्ट बनेगा? क्योंकि उसमें जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो टर्शरी अल्कोहल से ही बनेगा। कि जो टर्शरी अल्कोहल है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, उससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और उससे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन जो सबस्ट्रेट के तौर पे जो मॉलिक्यूल एक्ट करेगा वो टर्शरी कार्बोकेटाइन ही होगा, बिकॉज दिस इज मोस्ट स्टेबल। और जो दूसरा अल्कोहल हम लेंगे वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, अब ये वाला मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन कार्बन पे अटैक करेगी और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम एक अल्कोहल हमेशा टर्शरी लेंगे और दूसरी प्राइमरी लेंगे या सेकेंडरी लेंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, बट अगर दोनों प्राइमरी लेंगे तो फिर हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आएगा। सो इट दिस मेथड इज नॉट गुड फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर, it can be only used for symmetrical ethers. Now, the next method is Williamson's ether synthesis by the name of scientist Williamson, and this is very very important method, Williamson's ether synthesis. अब इस मेथड में भी हम क्या करते हैं बच्चों, इस मेथड में भी हम अल्कोहल ही स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं, बट हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम सोडियम मेटल से ट्रीट करवाएंगे। सोडियम मेटल से ट्रीट करवाने से सोडियम एल्क ऑक्साइड बन जाएगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। ठीक है, गैस है इजीली वहां से रिमूव हो जाएगी। हमें ये चाहिए सोडियम एल्क ऑक्साइड आयन, और जब भी अल्कोहल को सोडियम मेटल से ट्रीट करवाते हैं तो ये उसका एल्क ऑक्साइड आयन बन जाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हाफ मॉलिक्यूल्स के साथ ये करेंगे और हाफ मॉलिक्यूल को हम HCl से ट्रीट करवा के एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड एंड एल्काइल हैलाइड, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड एंड एल्काइल हैलाइड।
सोडियम आके क्लोराइड के साथ अटैच होगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा, और ये जो नेगेटिव पार्ट है ऑक्सीजन, ये आके इस कार्बन से अटैच होगी। हमारे पास इस तरह डाई एल्काइल ईथर बन जाएगी। इसमें एक एल्काइल ग्रुप जो है वो अल्कोहल से आएगा, और अल्कोहल जिससे हमने एल्कोक्साइड आयन बनाया था, और जो दूसरा एल्काइल ग्रुप है वो एल्काइल हेलाइड से आएगा। साथ में सोडियम क्लोराइड है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, इजीली वहां से रिमूव हो जाएगा। अब इस मेथड का एडवांटेज ये है कि इससे हम सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमेट्रिकल के लिए हम सेम अल्कोहल लेंगे, उसी से एल्कोक्साइड आयन बनाएंगे, और उससे ही हम एल्काइल हैलाइड। बट अगर हमने अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनानी है तो एल्कोक्साइड वाली ईथर अल्कोहल हम डिफरेंट लेंगे, और जिससे हमने एल्काइल हैलाइड बनाना है वो हम डिफरेंट अल्कोहल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये एथेनॉल है तो यहाँ पे हम प्रोपेनॉल अगर ले लेंगे, तो एक साइड पे इथाइल ग्रुप आएगा और दूसरी साइड पे प्रोपाइल ग्रुप आएगा, और इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हमने यहाँ पर फिनोल ली और उसको हमने रिएक्ट करवाया विथ बेंजाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर भी ये क्या है बच्चों, अल्कोहल है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा तो इससे क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। बिल्कुल ऐसे ही एल्क ऑक्साइड आयन बन जाएगा सोडियम के साथ, सोडियम फिनोक्साइड। कि जब भी फिनोल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, और ये सोडियम सॉल्ट फिर अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा। यहाँ से सोडियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ब्रोमाइड फॉर्म कर देगा, और ऑक्सीजन आकर इस कार्बन से अटैच होगा। तो हमारे पास जो ईथर आएगी उसमें एक साइड पे फिनाइल ग्रुप है और एक साइड पे बेंजाइल ग्रुप है। ठीक है, एक साइड पे बेंजाइल ग्रुप है, सो दिस बेंजाइल फिनाइल ईथर। इसमें मैकेनिज्म बता रहे हैं कि ये भी सिंपल SN2 डिस्प्लेसमेंट है प्राइमरी ऑन अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बाय एन अल्कोक्साइड आर फिनोक्साइड आयन। देखिए आप कह लें ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ये फिनोक्साइड आयन ने आके इस पे अटैक किया है। और अगर हमने मिक्स्ड ईथर बनानी है तो कहते हैं जो एल्कोक्साइड है वो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी कोई भी हो सकता है, बट जो एल्काइल हैलाइड लेना है वो प्राइमरी ही होना चाहिए, क्योंकि अगर SN2 रिएक्शन है तो इसने बैक साइड से अटैक करना है। अगर ये सेकेंडरी या टर्शरी होगा तो इसको अटैक करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जिसकी वजह से प्रॉपर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। सो इट्स विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें हमने क्या करना है, अल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन बनाना है, और सेकंड स्टेप में अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड। ये एल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और ईथर फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इस रिएक्शन में थोड़ी सी हम चेंजेस भी कर सकते हैं कि हम प्राइमरी अल्काइल सल्फेट्स या सल्फोनेट्स को भी यूज कर सकते हैं एज द सबस्ट्रेट्स फॉर द, क्योंकि ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं बच्चों ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो इसकी बजाय अगर हम ये यूज कर लें अल्काइल सल्फेट्स या अल्काइल सल्फोनेट्स, तो ये चीप होते हैं और इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं। कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, अगर हम अल्कोहल को ट्रीट करवाएं विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाएं इनऑर्गेनिक एसिड से, तो ये उसका एस्टर बन जाता है अल्काइल सल्फेट। ये हमने पीछे फिनोल की अल्काइलेशन के लिए भी यूज किया है कि फिनोल में अगर बेंजीन रिंग पे अल्काइलेशन करनी हो तो वो वहां भी हम इसको बेटर यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड्स। और कहते हैं अगर हमने एल्काइल मिथाइल ईथर्स बनानी है तो फिर हम यहाँ पर ये जो आर ग्रुप है ये मिथाइल लेंगे। मिथाइल सल्फेट को यूजली यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ मिथाइल आयोडाइड, बिकॉज मिथाइल आयोडाइड इज एक्सपेंसिव। तो सिंपल आप एल्काइल हैलाइड की बजाय फिर यहाँ पर एल्काइल सल्फेट्स यूज करेंगे या सल्फोनेट्स यूज करेंगे, तो इस पार्ट के साथ यहाँ पर एल्काइल पार्ट आ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट ईथर होगा। Now the third method is alk oxymercuration, demercuration of alkenes। हम एल्कीन्स से भी ईथर्स प्रिपेयर कर सकते हैं अगर स्टार्ट में हम उनकी एल्क ऑक्सी मर्क्यूरेशन करें और फिर डी मर्क्यूरेशन करें। इसमें वो थोड़ा सा प्रीवियस बता रहे हैं कि एल्कीन्स के चैप्टर में अल्कोहल्स प्रिपेयर होती थी एल्कीन से, अगर हम उनकी ट्रीटमेंट करवाएं विद मर्क्यूरिक एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब अगर हम एल्कीन्स को ट्रीट करवाएं विद मर्क्यूरिक एसीटेट ग्रुप है बच्चों, ये एसीटेट फ्रॉम एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O एसीटेट ग्रुप है। तो ये मर्क्यूरी कह रहे हैं, मर्क्यूरी की वैलेंसी 2 है, इसलिए इसके साथ 2 एसीटेट ग्रुप्स हैं। दिस इज मर्क्यूरिक एसीटेट। अगर हम एल्कीन को ट्रीट करवाएं विद मर्क्यूरिक एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, तो क्या होगा,
कार्बन, दोनों कार्बन में से जो डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन है उनमें से एक के साथ ओ आर आ जाएगा फ्रॉम अल्कोहल, यहाँ पर ओ आर अटैच हो जाएगा और इसके इस साइड पे मर्क्यूरस एसीटेट, ठीक है, मर्क्यूरस एसीटेट अब अटैच होगा और जो दूसरा एसीटेट है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इस हाइड्रोजन को लेके यहाँ से दूसरा एसीटेट ग्रुप जो है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये ओ आर ग्रुप आ गया, यहाँ पर ये मर्क्यूरस एसीटेट है और जो दूसरा एसीटेट ग्रुप है वो हाइड्रोजन को लेके एसिटिक एसिड है, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, आप डायरेक्ट एसिटिक एसिड भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर तो हमने इसकी करवाई मर्क्यूरेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करवानी है डीमर्क्यूरेशन, यानी यहाँ से ये मर्क्यूरिस एसीटेट को हमने रिमूव कराना है। उसके लिए हम इसको ट्रीट करवाएंगे विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 इज नोन एज सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये एक हाइड्राइड आयन देगा इस कार्बन को यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका काम जस्ट ये है कि एक यहाँ पर ये हाइड्राइड आयन देगा इस कार्बन को, तो ये CH2 से CH3 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये मर्क्यूरी एटम सेपरेट हो जाएगा और एसीटेट आयन जो है वो भी यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में आते हुए जस्ट क्या चेंज हुई है, इस CH2 को एक हाइड्रोजन मिली है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में। आप डायरेक्ट उसी तरह से पहले से लिख सकते हैं, OR को ऊपर ही रहने दें और इस तरफ CH3 लिख दें। यहाँ पर डायरेक्ट उसको लाइन में इथर को शो करने के लिए OR को इधर लिख दिया गया और इस CH2 को CH3 लिख दिया गया। So it's ether, RCHOR. Now this is ether. अब जो भी R ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। So it's preparation of ethers by alkoxy mercuration and demercuration of alkenes से हमने यहाँ पर प्रिपेयर की हैं ethers। ठीक है, फर्स्ट में हमने अल्कोहल से ईथर्स प्रिपेयर की फर्स्ट मेथड में, सेकंड मेथड में भी हमने अल्कोहल से ही ईथर्स प्रिपेयर की। अब थर्ड मेथड में भी हमने अल्कोहल को यूज तो किया है बट उसके साथ साथ हमने एल्कीन्स को भी यूज किया और उससे हमने ईथर्स प्रिपेयर किए। ओके, इस मेथड का भी एडवांटेज है विलियमसन सिंथेसिस से कि इसको हम यूज कर सकते हैं ईथर्स विद नियरली एवरी काइंड ऑफ एल्काइल ग्रुप, कि हर तरह का एल्काइल ग्रुप हम एल्कीन में लेके तो उससे हम ईथर्स प्रिपेयर कर सकते हैं और यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है बिटवीन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हम बल्कि अल्कोहल यूज करेंगे सेकेंडरी या टर्शरी तो जो मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरोएसीटेट है उसके साथ बेटर यील्ड आएगी, फिर मर्क्यूरिक एसीटेट से मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ बेटर रिएक्शन नहीं होगा। ये थे 3 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ethers. Now next we have to study physical properties of ethers. Now in case of physical properties we have to study melting point, boiling point, density and solubility. Now here is the table. From this table you have to just conclude about the trend of melting point, boiling point and density. तो इस टेबल से बच्चों आप इजीली देख सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स ईथर में इंक्रीज हो रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड आपने याद करना है, ये वैल्यूज याद नहीं करनी आपने, जस्ट आपको जनरल ट्रेंड पता होना चाहिए कि ईथर्स में अल्काइल ग्रुप्स का साइज इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। कहीं पर थोड़ी बहुत एक्सेप्शन हो सकती है बट ओवरऑल जनरल ट्रेंड ये है कि ये तीनों चीज़ें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जो डेंसिटी है वो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होगी। और जो लोअर मेंबर्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो है, इसलिए अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स लो होंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में होंगे या फिर वोलेटाइल लिक्विड्स की फॉर्म में होंगे और हाईली इनफ्लेमेबल है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होगा, मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, रूम टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा तो ये लिक्विड फॉर्म में और फिर सॉलिड फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे। जी, नेक्स्ट ये है कि अल्कोहल्स के साथ कंपेयर किया गया ईथर्स को कि अल्कोहल्स की तरह ईथर्स में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इनमें एसोसिएशंस पॉसिबल नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। अब इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ईथर्स में
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, ईथर मॉलिक्यूल्स की आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अब चूंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो हैं। वो मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो बॉइलिंग पॉइंट्स लो होंगे। इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो हमारे ईथर्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन से रिजेंबल करते हैं, कि मॉलिक्यूलर मास जिनका सेम है ईथर का और हाइड्रोकार्बन का, तो उनके आपस में जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कंपेरेबल हैं। और अल्कोहल से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत लो हैं। जैसे उन्होंने डाई इथाइल ईथर जिसका मॉलिक्यूलर वेट 74 है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 35 सेंटीग्रेड है। और एन पेंटेन 5 कार्बन हमारी एल्केन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 72 है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 36 है। यानी 74 72 मॉलिक्यूलर मास क्लोज हैं, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्लोज हैं। जबकि अगर हम एन ब्यूटाइल अल्कोहल लें, उसका भी मॉलिक्यूलर वेट 74 है, बट उसका बॉइलिंग पॉइंट 117 है। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई क्यों है? क्योंकि अल्कोहल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, जिसकी वजह से उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अल्कोहल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नाउ नेक्स्ट है बच्चों सॉल्बिलिटी, कि अगर हम ईथर्स को सॉल्बल करना चाहें तो जो लोअर ईथर्स है हमारी अप टू 4 to 5 कार्बन जिनमें होंगी, वो वाटर में टू लिटिल एक्सटेंट सॉल्बल हैं, क्योंकि उनमें ये ऑक्सीजन एटम जो है ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसलिए लोअर ईथर्स हमारी वाटर में सॉल्बल हैं लोअर अल्कोहल्स की तरह। बट जैसे ही कार्बन नंबर 4 5 से एक्सीड करेगा, तो अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं कि डाइथाइल ईथर लाइक एन ब्यूटाइल अल्कोहल इज सॉल्युबल टू द एक्सटेंट ऑफ 8 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर, और अगर जो सॉल्युबिलिटी एन पेंटेन की है वो ओनली अबाउट 0.04 ग्राम पर 100 ml है। तो ईथर्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो अल्कोहल से कंपेरेबल है। इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स के साथ मैच कर रहा था, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है वो अल्कोहल से मैच कर रही है। रीजन क्या है? कि ये वाटर के साथ इनकी टू अ लिटिल एक्सटेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो सिर्फ लोअर ईथर्स जिनमें अप टू 4 to 5 कार्बन होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगी। जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होता जाएगा, उनके वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट इनकी डेंसिटीज बताई गई हैं कि लेस डेंस देन वाटर है, बट हाइड्रोकार्बन से इनकी डेंसिटी ज्यादा है। और नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ईथर्स, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इजीली सॉल्युबल होती हैं, बल्कि इनको खुद एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है बहुत सारे रिएक्शंस में। आपने ग्रिग्नर रीजेंट के रिएक्शंस पढ़े हैं बहुत सारे, या उसकी इवन प्रिपरेशन जो है वो भी ईथर की प्रेजेंस में की जाती है, बिकॉज ईथर्स आर इनर्ट टुवर्ड्स मेनी ऑफ द रीजेंट्स। तो बहुत सारे रिएक्शन में इनको एज अ सॉल्वेंट यूज कर लिया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा ये वीकली बेसिक भी होती है इन नेचर में, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्सीजन पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो इसलिए ये वीकली बेसिक भी हैं। तो इनको केटाइंस को सॉल्वेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। केटाइंस पॉजिटिव आइंस को सॉल्वेट करने के लिए भी यूज किया जाता है, जहां पर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके उस केटाइन को सॉल्बल कर लेती है। Now, next we will study the reactions of ethers. जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ईथर्स जो हैं वो इनर्ट होती हैं टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द रीजेंट। मोस्टली वो स्टेबल होती हैं और ऑक्सीडाइज बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करती, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। इवन वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी स्टेबल होती हैं। सम और कंसंट्रेटेड जो एसिड्स हैं उनके साथ ऑक्सोनियम आइंस फॉर्म कर लेती हैं, लेकिन इनके ऑक्सोनियम सॉल्ट्स भी जो है वो अनस्टेबल होते हैं और इजीली ब्रेकअप हो जाता है उनका। इसीलिए ये जो इनकी रेजिस्टेंस है बहुत सारे रीजेंट्स के लिए, उसकी बेस पे हम इनको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। जैसे ग्रिग्नर रीजेंट के रिएक्शंस हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिएक्शंस हैं, या वर्ट्स रिएक्शन है, उन सब में ईथर्स को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। बट जो ईथर्स हैं फ्री रेडिकल्स उन पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए उनको फ्री रेडिकल रिएक्शंस में हम एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करते। कि जहाँ किसी रिएक्शन में कोई फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, फिर हम ईथर को एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल के साथ ये रिएक्ट करती हैं। अदरवाइज ये एसिड्स बेसिस ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो वहां पर हम इनको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो 2 3 रिएक्शंस हैं जस्ट ईथर्स के, जिनको हम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इनर्ट है। इसलिए आप लोगों के लिए भी बहुत ईजी है कि आपको इनके बहुत कम रिएक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट वन है क्लीवेज ऑफ द ईथर लिंकेज। जो ईथर लिंकेज है वो इजीली क्लीव हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, अगर हम उसको जस्ट हीट करें विद सल्फ्यूरिक एसिड।
तो उससे ओरिजिनल अल्कोहल्स बन जाएंगी जिससे हमने उस ईथर को प्रिपेयर किया होगा। और सिंपल इसमें जो मैकेनिज्म है वो SN2 मैकेनिज्म होगा। ये हम क्लीवेज ऑफ ईथर लिंकेज की डिटेल पढ़ेंगे। जो फर्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन इन एयर, ये मैं एट द एंड डिटेल में आपको करवाऊंगी। क्लीवेज ऑफ ईथर्स विद एसिड्स है। अब अगर हम अल्कोहल को ट्रीट करवाएं विद HX के साथ, एसिड हेलाइड के साथ, तो यहाँ पर, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है, वाटर बन जाता है और एल्काइल हेलाइड बन जाता है। ठीक है। अब अगर हम ईथर को ट्रीट करवाएंगे HX के साथ, तो क्या होगा, यहाँ से OR रिमूव होगा, वो H के साथ मिलके ROH यानी अल्कोहल बना देगा, और दूसरा R जो है वो X के साथ मिलकर एल्काइल हेलाइड बना देगा। अब इस केस में रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप होता नहीं बच्चों, जो सेकंड मॉलिक्यूल अल्कोहल का वो भी नेक्स्ट HX के साथ रिएक्ट करके वो भी एल्काइल हेलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल ये है कि इसमें जो अल्कोहल है उसको अगर हम HX के साथ ट्रीट करवाएंगे तो अल्कोहल एल्काइल हेलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। इससे पहले मैंने पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ओरिजिनल अल्कोहल्स बन जाएंगी, लेकिन अगर हम एल्काइल हेलाइड के साथ, सॉरी HX के साथ एसिड हेलाइड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो एल्काइल हेलाइड हमारा प्रोडक्ट होगा, और दोनों साइड पे जो R ग्रुप है वो दोनों ही एल्काइल हेलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अगर हम जो पहला मॉलिक्यूल था वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया, अब जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो भी HX के साथ रिएक्ट करेगा, और उससे दोनों मॉलिक्यूल जो है हमारे दोनों साइड्स के जो R हैं वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्लस साथ में वाटर फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ईथर ली, इसमें साइड पे मिथाइल ग्रुप है और इस साइड पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है बच्चों, सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर है। अगर हम इसको एसिड हेलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ, HBr के साथ, तो ये मिथाइल ग्रुप से भी Br अटैच होने के साथ एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, और जो सेकंड पार्ट है इसके साथ भी हैलोजन अटैच होगा और इससे भी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, यानी 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगी, और ये सिंपल ब्रोमो मीथेन, यानी जो भी हमारी ईथर होगी उसके दोनों एल्काइल ग्रुप्स एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी बताई है कि इसमें हाइड्रोआइडिक एसिड इज मोस्ट एक्टिव, देन हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज नॉट इफेक्टिव। नेक्स्ट इसमें मैकेनिज्म दिया है। मैकेनिज्म में ये फर्स्ट जनरल रिएक्शन है कि HBr इसके साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों मॉलिक्यूल्स एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस वाटर रिमूव होगा। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म हम करेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप, इन द फर्स्ट स्टेप HBr, that is hydrogen bromide, will give proton to this oxygen, will protonate this oxygen. So oxygen will acquire a positive charge. Bromide leave कर रहा है, यहाँ पे bromide पे नेगेटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ब्रोमाइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो सेकंड स्टेप में ये ब्रोमाइड आयन आके कार्बन पे अटैक करेगा, दोनों साइड में से किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस पार्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्काइल हैलाइड, ये CH3CH2Br बन जाएगा, और इस पार्ट से बनेगी अल्कोहल। अब रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा। अब ये अल्कोहल नेक्स्ट HBr के साथ रिएक्ट करेगी, ये प्रोटॉन इसको प्रोटोनेट करेगा ऑक्सीजन को। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से, एक्चुअल में तो ये होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और जो ब्रोमाइडाइन, ये ब्रोमाइडाइन है, यहाँ पे प्लस ब्रोमाइडाइन आना था, ब्रोमाइडाइन जो है ये आके इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो ये भी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगी और प्लस वाटर। सो 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट 2 स्टेप्स में वन साइड वाले एल्काइल ग्रुप से एल्काइल हैलाइड बनेगा, और नेक्स्ट 2 स्टेप में सेम मैकेनिज्म है, बट फिर ईथर के साथ नहीं होगा, जो सेकंड मॉलिक्यूल अल्कोहल का बना है वो नेक्स्ट HBr के साथ रिएक्ट करके तो एल्काइल हैलाइड का सेकंड मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ethers is auto-oxidation. Oxidation in the presence of only air is known as auto-oxidation, यानी ईथर मॉलिक्यूल्स खुद भी पड़े रहें और एयर प्रेजेंट हो, यानी ओपन कंटेनर में रखेंगे तो खुद ब खुद उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दैट इज नोन एज ऑटो ऑक्सीडेशन। और इस ऑटो ऑक्सीडेशन से 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, हाइड्रोपारोक्साइड्स बन सकते हैं और पारोक्साइड्स। अब हम देखेंगे कि ये दोनों प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे। इस रिएक्शन में रिक्वायर्ड होता है बच्चों एक रेडिकल इनिशिएटर।
ठीक है। रेडिकल इनिशिएटर अगर रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट होगा और एयर भी प्रेजेंट है तो सबसे पहले ये रेडिकल इनिशिएटर आर फ्री रेडिकल जो है वो अल्फा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब ईथर्स में ईथर लिंकेज के अलावा ये जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये रिएक्टिव साइट है। ये ईथर लिंकेज है। ऑक्सीजन के साथ जो डायरेक्ट कार्बन अटैच होगी वो अल्फा कार्बन होगी और उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। जो फ्री रेडिकल है ये यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। इससे आर एच यानी हाइड्रोकार्बन बन जाएगा और इस कार्बन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था तो ये हाइड्रोजन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही रहेगा और अगर 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है तो ये एक फ्री रेडिकल है। अब ये खुद तो आर एच में कन्वर्ट हो गया लेकिन इसने ईथर को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये एयर ऑक्सीजन के साथ इजीली यहाँ से रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ने एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में से उसने एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड में यूज कर लिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे प्रेजेंट रहेगा। अब ये यहाँ पर नया फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है बच्चों इसके पास टू पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। इस फ्री रेडिकल के पास टू पॉसिबिलिटीज हैं कि एक तो ये कर सकता है कि किसी स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से प्रोटॉन ले ले क्योंकि ये प्रोटॉन जो है ये एक्टिव साइट है ईथर में। ठीक है। इसके पास टू पॉसिबिलिटीज हैं कि ये या तो इस स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से प्रोटॉन ले ले। ये देखिए ये स्टार्टिंग मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। ये इससे अगर प्रोटॉन ले लेगा तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा और उसके साथ साथ ये मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसने प्रोटॉन लेना है तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही हाइड्रोजन एटम को लेना है तो हाइड्रोजन एटम यहाँ आ जाएगा और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और ये फ्री रेडिकल। अब ये जो प्रोडक्ट है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है इट्स नोन एज हाइड्रो पर ऑक्साइड। इट्स हाइड्रो पर ऑक्साइड। ये एक पॉसिबिलिटी थी। अब इसके पास सेकंड पॉसिबिलिटी है कि कोई और फ्री रेडिकल बना हुआ है ये उसके साथ रिएक्ट कर ले। टू फ्री रेडिकल्स भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। ये फ्री रेडिकल जो है ये इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। मैंने आपको बताया दो पॉसिबिलिटीज हैं इसके पास कि या तो ये एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से प्रोटॉन ले ले तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये किसी और फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर ले क्योंकि दो फ्री रेडिकल्स भी आपस में फौरन रिएक्ट करते हैं तो ये फ्री रेडिकल यहाँ पर लिखा गया है। अब ये ऑक्सीजन अगर इस कार्बन के साथ अटैच होगी तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ये ROCH ऐसे ही हमने लिखा दरमियान में ये वाली दो ऑक्सीजन को दरमियान में लिखा हमने। फिर नेक्स्ट ये कार्बन है हाइड्रोजन इसके साथ R और फिर ये OR को ऑपोजिट साइड पे लिख दिया। नाउ व्हेन टू ऑक्सीजन्स आर बिटवीन टू कार्बन्स नाउ इट्स नोन एज पर ऑक्साइड। अगर OOH है तो ये हाइड्रो पर ऑक्साइड है बट दिस इज पर ऑक्साइड। सो इट वाज ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स अगर किसी कंटेनर में ज्यादा देर के लिए पड़ी रहे तो उनकी ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाती है सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाती है जिससे वो हाइड्रो पेरोक्साइड्स बनाती हैं और पेरोक्साइड्स बनाती हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर ईथर्स को ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ ईथर किसी भी टाइप की ईथर्स को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करें एनी लेंथ ऑफ टाइम यानी शॉर्ट टाइम के लिए भी करें तो उनमें पेरोक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू ऑटो ऑक्सीडेशन। ठीक है। और इसमें स्पेशल उन्होंने बताया कि जो डाई आइसोप्रोपाइल ईथर है उससे पेरोक्साइड जो है वो मोर रेडिली बनता है देन अदर ethers. Now, next are some questions from exercise. The first question is name each of the following ethers by both alkoxy and oxa systems. आपने इन 6 कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। एल्कोक्सी सिस्टम में से भी यानी आईयूपैक में जो पहली टाइप है उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है और फिर ऑक्सा सिस्टम के अकॉर्डिंग भी नेमिंग करनी है और इन सब के नेम्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कंपाउंड्स के नेम्स दे दिए गए हैं आपने इनकी स्ट्रक्चर लिखनी है। ठीक है। इन सब कंपाउंड्स के नेम्स आपको दिए गए हैं आपने इन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स लिखनी है ओपन करके। और जो थर्ड क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ ऑल द आइसोमेरिक ईथर्स विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O एंड गिव द कॉमन एंड आईयूपैक नेम्स फॉर ईच स्ट्रक्चर। आइसोमर्स बच्चों आप पढ़ चुके हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आर नोन एज आइसोमर्स। तो इस बात को माइंड में रखते हुए आपने C5H12O के डिफरेंट आइसोमर्स लिखने हैं कि ओवरऑल उसमें 5 कार्बन होनी चाहिए 12 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है। आप इथाइल प्रोपाइल ईथर लिख सकते हैं। आप मिथाइल ब्यूटाइल ईथर लिख सकते हैं। इस तरह आप ब्यूटाइल को आइसोब्यूटाइल कर सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल कर सकते हैं प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल एक साइड पे कर सकते हैं।
ये सब करते हुए आपने इस ईथर के आइसोमर्स लिखने हैं और उनके कॉमन नेम्स भी लिखने हैं और उसके साथ साथ फिर आईयूपैक नेम्स भी लिखने हैं। अब यहाँ पर आईयूपैक नेम्स आप एक सिस्टम से लिख लें, एल्कोक्सी सिस्टम से ही आप आईयूपैक नेम्स लिख लें। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करवाएंगे। अल्लाह हाफिज।